Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic for survey is uh, sorry, this is 12th is modern surveying techniques. Up till now, maybe we were studying the conventional or uh, most used methods for surveying, but with the passage of time and advancement in technologies and advancement in studies, uh, you step forward towards the modern techniques in every aspect of engineering. So today's topic is similar with that concept, that what are the modern instruments or what are the modern techniques that we can use to perform surveying, different types of surveying. So this is probably the last lecture for our this particular course. So let us see, okay, uh, what are the different modern surveying techniques that we have or we can apply. Okay, so we all know that what is surveying. Surveying is defined as the science of making measurements, especially of the Earth's surface. This is being done by finding out the spatial location of points on or near the surface of Earth. Direct method and instruments are being used to facilitate the work of surveying. Okay, so you all have a very a strong idea of surveying, that the purpose of surveying is to form a map of a site. Now you have to form the map of a site by using your knowledge, surveying knowledge, using your skills, and using some surveying techniques along with surveying equipments. Okay. So after doing that survey, you just simply convert or transfer the profile of ground or earth along with the different features of earth on the page. Okay, so these are the objectives of surveying: to collect field data, to prepare plan or map of the area surveyed, to analyze and calculate the field parameters for setting out operations of actual engineering work. Surveyor work with elements of geometry, trigonometry, physics, engineering, metrology, programming languages and regression analysis. तो ये वो सारे बात कर रहे हैं कि ये सारी टेक्निक्स सर्वेयर्स जो हैं वो यूज करते हैं. ठीक है. अच्छा, मॉडर्न इक्विपमेंट्स में अगर हम देखें, अभी तक हम तो सिंपल वही थोडोलाइट, ऑटो लेवल, रेंजिंग रॉड्स और स्टाफ रॉड्स और ये सब, और चेनिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स, फिर इसी तरह प्लेन टेबल सर्वे और ये सब हम देखते आ रहे हैं. ठीक है. अब थोड़ा सा मॉडर्न उसकी तरफ मूव करते हैं, जिसमें आपको शायद लास्ट टाइम आपकी यूनिवर्सिटी में एक प्रैक्टिकल करवाया भी गया था जीपीएस का, जो जियोग्राफिक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का. ठीक है. तो अब एक आपका डिजिटल लेवल है. फिर देखें ईडीएम आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेंसिटी डिस्टेंस, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. फिर इसी तरह टोटल स्टेशन, फिर इसी तरह रिमोट सेंसिंग या सैटेलाइट्स के हेल्प से आप, रिमोट मतलब दूर से कोई काम आप कर रहे हो. ठीक है. अच्छा, डिजिटल लेवल क्या है जी? डिजिटल लेवल्स यूज इलेक्ट्रॉनिक इमेज प्रोसेसिंग to evaluate the special bar-coded staff reading. ठीक है. तो वो इलेक्ट्रॉनिक, अब ये हमें, ये जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो बड़ा अच्छा समझेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इमेज प्रोसेसिंग. ठीक है. लेकिन वो कहते हैं कि उसके ये जो डिजिटल लेवल है, ये इस
है उस पर काम करता है, और उसके अंदर बार कोडिंग हुई होती है जो कि इसको स्टाफ रीडिंग्स को बड़ा एक्यूरेटली और प्रिसाइजली मेजर करता है और खुद ही रीड नोट कर जाता है. दिस बार कोडेड पैटर्न इज कन्वर्टेड इनटू एलिवेशन and distances values using a digital image matching procedure within the instrument. अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से जिस तरह से ये कह रहा है कि इसमें हमें स्टाफ फ्रॉड जो है वो ज़रूरत होता है, लेकिन ये इमेज के थ्रू ये इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग नोट करके और इमेज बना के तो उसमें फिर कन्वर्ट करता है इसको कोड्स में और पता नहीं क्या क्या करता है. तो दिस इज हाउ डिजिटल लेवल जो वर्क्स. ठीक है. यूजेस क्या है कि फॉर मेजरिंग एलिवेशंस, हाइट्स, हाइट डिफरेंस, लेवलिंग ऑफ सीलिंग. ठीक है. सीलिंग यानी कि वो कितना प्रिसाइज काम है कि सीलिंग का एक कॉर्नर हम देखें उसकी क्या हाइट है, दूसरा कॉर्नर, इवन वो कॉर्नर में भी आपस में इंचेस में आप फर्क हो, लेकिन इंश्योर करने के लिए कि हाँ इसकी इसकी जो हाइट है या वो सेम है या सीलिंग जो है वो बिल्कुल फ्लैट है. ठीक है. वो उसमें इंक्लाइंड ऐसा कुछ भी नहीं है. डिजिटल लेवल्स के जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो आपको बता रहे हैं. फटीग फ्री ऑब्जर्वेशन. फटीग फ्री मतलब एक काम आप बार बार करें, रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. एज विजुअल स्टाफ रीडिंग बाय द ऑब्जर्वर इज नॉट रिक्वायर्ड. अच्छा, विजुअल स्टाफ रीडिंग बाय द ऑब्जर्वर इज नॉट रिक्वायर्ड, ये बहुत बड़ी बात है. कैसे कि डिजिटल लेवल जो है ये खुद ही रीड कर लेता है, मतलब ये नोट रीडिंग नोट करता जाता है. जो ऑब्जर्वर है उसको जरूरत ही नहीं है कि वो आई पीस से आंख लगा के रीडिंग नोट करे फिर लिखे, बल्कि ये काम ये डिजिटल लेवल खुद ही करता है. ठीक है. फिर यूजर फ्रेंडली है, और मतलब ये काम ही खुद कर रहा है सारा. डिस्प्ले रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे डिस्प्ले कर रहा है पिक्चर इमेजेस की फॉर्म में, तो ये यूजर फ्रेंडली हुआ. फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ कंसिस्टेंट प्रिसीजन एंड रिलायबिलिटी ड्यू टू ऑटोमेशन. तो इसमें जो है प्रिसीजन और रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है या प्रिसाइज है, और ये ड्यू टू ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेटिक हुआ है. ठीक है. इसी तरह ऑटोमेटिक डेटा स्टोरेज एलिमिनेट्स बुकिंग एंड इट्स एसोसिएटेड एरर्स. तो अब लेट्स से अगर मेरे सामने आप में से किसी एक ने लेट्स से आपके सीआर ने स्टाफ लॉट पकड़ा हुआ है और आपका वाइस सीआर जो है वो नोट कर रहे हैं रीडिंग्स. तो अब जो जिसने स्टाफ लॉट पकड़ा है मैं भी उसने टिल्ट पकड़ा हो, मैं भी अच्छा मैं भी उसने ठीक पकड़ा हो, लेकिन जो आपको वाइस सीआर जो रीडिंग नोट कर रहा है और एक कोई तीसरा बंदा जो वो रीडिंग बताएगा वो ये लिखेगा, तो मे भी इसमें कोई जो रीडर है वो रीडिंग गलत रीड कर रहा हो, उसको रीड करने की प्रॉपर वो प्रैक्टिस ना हो. फिर वो जो रीडिंग नोट कर रहे हैं मे भी वो अपनी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दे. लेकिन यहाँ पे ये सारे काम ये जो डिजिटल लेवल खुद ही करता है. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे एरर्स के जो चांसेस हैं वो कम है. वर्केबिलिटी इसकी क्या है, मतलब कैसे काम ये कैसे करता है. द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टाफ रीडिंग, a beam splitter is interconnected which transfer the barcode image to a detector diode array. The light reflected from the white elements only of the barcode is divided into infrared and visible light component by a beam splitter. The visible light passes on to the observer. The required barcode image is converted into an analogous video signal which is then compared with the stored reference codes. तो वो मतलब सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं, ये जो आगे जो स्टाफ रॉड पकड़ के एक बंदा खड़ा होता है वो ये जो डिजिटल ऑटो लेवल है ये क्या करता है कि ये जो लाइट की जो है ना रे जो है वो ट्रांसफर करता है. अब वो लाइट उस पर पड़ती है. ठीक है. इंफ्रारेड और जो बार और विजिबल लाइट के दोनों कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है. बीम स्प्लिटर के अंदर. तो वो लाइट उस पे स्टाफ रॉड पे पड़ती है, वो खुद ब खुद वो जो लाइट है वो उस रीडिंग को नोट कर लेता है. नोट करके जो अपने उसके अंदर जो कोडिंग ऑलरेडी हुई होती है कोडिंग के अकॉर्डिंग वो रीडिंग्स को स्टोर भी कर लेते हैं और नोट डाउन कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सिग्नल्स. सो आई होप कि इससे कुछ ना कुछ आइडिया आपको हो रहा होगा तो ये क्या है. This lecture is just to let you know that what are the advanced or digital equipments used in surveying as well. ठीक है.
ये बड़ी हायर अथॉरिटीज करती हैं, हमें बीइंग एन इंजीनियर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ईडीएम, ईडीएम क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। ईडीएम इज अ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट for measuring distance electronically between 2 points through electromagnetic waves. The distance measured by EDM is more precise than measured with chain or tape, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आप जो है वो डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और इसका डिस्टेंस जो ये जो आपको रीडिंग्स आती हैं वो स्टाफ और अपना चेन और टेप से ज़्यादा ये प्रिसाइज होती है। तो इस तरह का ये होता है। और ये हमारे पास एक, लेट मी शो यू कि ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसको हम ऊपर ले आते हैं। इसको अगर मैं आपको यूं करके दिखाऊं तो ये देखें, ये जो ईडीएम है, एक मशीन ये वाला, ठीक है। दूसरी जगह पे, जिस जगह पे आपने रीडिंग को नोट करना है, आप एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को सेंड करता है इस रिफ्लेक्टर के पास। रिफ्लेक्टर क्या कहते हैं, सिग्नल्स को डिटेक्ट करके फिर दोबारा से वो सिग्नल्स को वापस इसको भेजता है। तो ये जो सिग्नल यहाँ से एक फॉरवर्ड पाथ और ये रिफ्लेक्टेड पाथ, तो यहाँ से होता क्या है कि आपका जो डिस्टेंस है इन सिग्नल्स की मदद से, ये मतलब अब इन दोनों के दरमियान जो बिल्कुल एक्यूरेट डिस्टेंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में वो क्या करता है, वो डिस्टेंस नोट डाउन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। ऑलराइट, तो ये उसका एक, आप कह लें थोड़ा सा आपको टोटल स्टेशन और उसका जस्ट कंपैरिजन टाइप, ये जस्ट आइडिया देने के लिए। इलेक्ट्रो ईडीएम, ईडीएम क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि ईडीएम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से करता है। Theodolites क्या कहते हैं, EDM is commonly carried out with the digital instrument called theodolites. EDM instruments are highly reliable and convenient pieces of surveying equipment. Total station में क्या होता है, a device that shares similarities with the theodolite and can be used to measure distances as well as angles. Theodolite सिर्फ डिस्टेंस मेजर करता है, टोटल स्टेशन डिस्टेंस और एंगल्स दोनों मेजर करता है। ईडीएम जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिकली डिस्टेंस को मेजर करता है और अप टू 100 किलोमीटर। हाँ, ईडीएम का एक बहुत बड़ा फायदा कि अप टू 100 किलोमीटर, बहुत बड़ी लेंथ है, 100 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस को मेजर करता है। मतलब इतने रेज फेंकनी है, वो डिटेक्टर ने आगे से डिटेक्ट करनी है और बात खत्म, वो डिस्टेंस मेजर कर लेता है आपको 100 किलोमीटर। तो ईडीएम मेजर स्लोप, ये पीछे हम देख चुके हैं, थोड़ी सी मतलब वर्डिंग चेंज करके दोबारा वही बात बताई गई है। Measure slope distance between transmitter and receiver by modulating the continuous carrier wave at different frequencies and then measuring the phase difference at the master station between outgoing and incoming signals, ठीक है। दो आपके स्टेशन पे, एक आउटगोइंग है एक इनकमिंग है, तो एक सिग्नल्स को रिसीव करता है, एक डिटेक्ट करता है, तो दैट्स, और स्लोप डिस्टेंस भी मेजर करता है ये नहीं कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम, दैट हाउ इट वर्क्स। ये आपका ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये सेंटरिंग हुई हुई है, ठीक है, ये सेंटरिंग हुई हुई है। तो ये एक तरफ से इसने रेज फेंकी, रिफ्लेक्टर ने रेज को रिफ्लेक्ट किया, डिटेक्ट किया, फिर रिफ्लेक्ट बैक किया, तो ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या वेव इसने फेंकी, इसने रिफ्लेक्टर ने डिटेक्ट किया और बाकी फिर ये रिटर्न किया उसको। तो अब इन दोनों के दरमियान जितना भी डिस्टेंस होगा ये इसने मेजर कर लिए अलॉन्ग विद द एंगल, ठीक है, ए और बी के दरमियान। तो ये इस तरह की एक इक्वेशन, ये डी की फॉर्म में इक्वेशन है, और इसी तरह ये एक एल की फॉर्म में इक्वेशन है, प्रिंसिपल उसका। डिस्टेंस डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ वेवलेंथ्स ट्रेवल्ड इज इक्वल टू दिस, एल इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस 5/2। Errors are generally small and insignificant for short distances
हाँ, बहुत स्मॉल होते हैं और बहुत कम होते हैं नजर आने वाले। तो फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेज दे कैन बी मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। एरर्स कैन बी अकाउंटेड फॉर मैनुअली और बाय एडीएम इफ इट हैज द कैपेसिटी। वेलोसिटी ऑफ लाइट कैन बी अफेक्टेड। अच्छा, जो लाइट ये जो हम सिग्नल्स डिटेक्ट फेंकते हैं, तो उसमें जो एरर्स के चांसेस जो हैं, या आप कह लेंगे थोड़ा सा जो आपका अनसर्टेनिटी के जो चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। कब? जब टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो या सूटेबल ना हो जिसमें आप ईडीएम्स के साथ काम कर सकें। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाटर वेपर कंटेंट, तो ये चीज़ें जब होंगी, जब ये इसके साथ ईडीएम के साथ जब ये मैच नहीं करेंगी जिस इन्वायरमेंट में वो ईडीएम काम करता है, तो उस केस में आपके थोड़ा सा रीडिंग में थोड़ा सा जैसे इनसिग्निफिकेंसीज के चांसेस हैं, ठीक है। ऑपरेशन विद ईडीएम, यानी कि जब आपने काम करना है ईडीएम के साथ आपने कैसे करना है। 4 बेसिक स्टेप हैं। पहले आपने सेटअप इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है, ठीक है। फिर एम करना है। एम मींस कि जो दूसरे वाला आपका इंस्ट्रूमेंट है ये वाला, ठीक है। यानी कि पहले आपने इंस्ट्रूमेंट दोनों को सेट किया, फिर एम किया, मतलब इसके साथ आपने इसको टारगेट किया, हिट किया या साइट किया। फिर क्या किया? मैयर, इंस्ट्रूमेंट के साथ आपने तो मैयर का जो भी है बटन प्रेस होगा या जो भी है उसका मैकेनिज्म आप मैयर करेंगे एंड देन साथ में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो सेट कैसे करना है? द इंस्ट्रूमेंट इज सेंटर्ड, इंस्ट्रूमेंट सेंटर्ड ओवर अ स्टेशन बाय मींस ऑफ ट्राई ब्रॉच या ट्राईपॉड कह लें। रिफ्लेक्टर प्रिज्म्स आर सेट ओवर द रिमोट स्टेशन ऑन ट्राई ब्रॉच, ठीक है। फिर एम करना है। इंस्ट्रूमेंट इज एम्ड एट प्रिज्म्स by using sighting devices or theodolite telescope. Slow motion screws are used to intersect the prism centers. Some kind of electronic sound by beeping signal helps the user to indicate the status of centering. ठीक है। अब सेंटरिंग में वो एक बात कर रहे हैं कि उसके अंदर आवाज़ लगी होती है बीट की, यानी कि कोई जब वो सेंटर हो जाता है वो आवाज़ देता है कि हाँ अब सेंटरिंग हो गई है। इसी तरह वो कहता है कि टेलीस्कोप के साथ आपने उसको साइट करना है, और उसके कोई लाइट है, फिर उसके बाद स्लो मोशन स्क्रीव्स हैं जिसकी हेल्प से आप उसको सेंटर करते हैं, ठीक है। तो फिर मतलब सिंपल सी बात है, जिस तरह थोडोलाइट को आप लेते हैं और सेंटरिंग लेवलिंग और सारी चीज़ें, इसी तरह इसके अंदर भी मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि एडवांस इक्विपमेंट है। तो उसके हेल्प से आप इसको सेंटरिंग लेवलिंग और फिर उसके बाद एम करते हैं। देन मेजरमेंट, द ऑपरेटर passes द measure बटन टू रिकॉर्ड द स्लोप डिस्टेंस which is displayed on LCD panel, ठीक है। द इंफॉर्मेशन ऑफ LCD panel कैन बी रिकॉर्डेड मैनुअली और ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर एरर्स क्या क्या हो सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट एरर, एटमॉस्फेरिक एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर क्या है? ये दो तीन किस्म के हो सकते हैं, या तो इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा मसला है, यूज ज़्यादा हो गया है, जो भी है। फिर एटमॉस्फेरिक वो जो कंडीशन हमने बात की वो भी हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो हमारे जो नीचे लेफ्ट से ट्राइपॉड स्टैंड है वो सही नहीं है, कि वो जो दूसरी जगह पे हमने लगाया हुआ डिटेक्टर उसमें कोई मसला है। तो इस तरह से इसमें एरर के चांसेस हो सकते हैं। टोटल स्टेशन क्या करता है? ये थोड़ा सा हमारा जो थोडोलाइट है उससे थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। दिस इंस्ट्रूमेंट कैन रिकॉर्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स टुगेदर विद द स्लोप डिस्टेंस एंड कैन बी कंसिडर्ड एज कंबाइंड ईडीएम प्लस इलेक्ट्रॉनिक थोडोलाइट, ठीक है। यानी कि दिस वर्क एज एन ईडीएम एंड इलेक्ट्रॉनिक थोडोलाइट एज एट द सेम टाइम, इसको हम कह सकते हैं। Salient इसके फीचर्स क्या हैं कि टोटल स्टेशन कैप्चर्स द स्पेशल डेटा फॉर 3 डायमेंशनल पोजीशन फिक्स, द एंगल्स एंड डिस्टेंसेस आर डिस्प्लेड ऑन अ डिजिटल रीड आउट एंड कैन बी रिकॉर्डेड, ये ठीक है। इसके ऊपर आप फिक्स कर देते हैं, सेव भी करते हैं डेटा सारा और रिकॉर्ड भी करते हैं। वेरियस कंपोनेंट ऑफ टिपिकल टोटल स्टेशन आर शोन इन द फिगर, ठीक है। ये उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह थोडोलाइट पे भी हमने एक लेक्चर देखा था जिसपे उसके वेरियस कंपोनेंट्स थे, वो सारा आपसे वीडियोज भी मैंने शेयर की थी। सो नाउ द फील्ड ऑपरेशन विद टोटल स्टेशन, मतलब आपने टोटल स्टेशन के साथ अगर काम करना है तो वो कैसे करेंगे? तो प्रोग्राम्स नीड एट लीस्ट वन identified reference station so that all subsequent stations can be identified in terms of x y z। मतलब एक जो प्रोग्राम है जो स्टार्ट वाला पोर्शन है या पोजीशन है वो आपने आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसके हेल्प से आपने बाकी जो आपके पोजीशन हैं उसको लोकेट करना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स या वाई जी या ए बी सी जो भी आप करते हैं, ठीक है। इंक्लूड द फॉलोइंग फंक्शंस: पॉइंट लोकेशन, फिर उसके बाद मिसिंग लाइन मेजरमेंट, रीसेक्शन,
remote distance and elevation measurement, offset measurement, layout और setting out operation, area computation। तो ये सारी के सारे फंक्शन इसके अंदर हैं, जस्ट आपने इसको इंक्लूड करना है या एक्टिव करना है, तो एट द सेम टाइम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेगा, मेजर करेगा। तो एंड पे आपको एक फाइल्स मिल जाती है इसकी यूएसबी टाइप, और उसमें आप लेके तो ये अपने सिस्टम में तो जो भी इसका सॉफ्टवेयर होता है उसके अकॉर्डिंगली आप इसका जो डेटा है या मैप है वो प्लॉट करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटल स्टेशन हैं जो अवेलेबल हैं, डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बना रहे हैं, ठीक है। फिर सर रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या है कि अब रिमोटली आप किसी चीज़ को सेंस कर रहे हैं, तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट से हम क्या करते हैं, मतलब सिग्नल्स, सैटेलाइट जो है चूंकि सारे अर्थ के एक बड़े पोर्शन को कवर कर रहा होता है, तो नीचे हमारे पास डिटेक्टर लगे होते हैं, तो वो सिग्नल्स को वो डिटेक्ट करके तो हमें देता है। इसी तरह देखें, साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, एरिया और फिनोमिना थ्रू द एनालिसिस ऑफ डेटा एक्वायर्ड बाय डिवाइस दैट इज नॉट इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, एरिया और फिनोमिना अंडर इन्वेस्टिगेशन। मतलब हम एक ऐसी चीज से काम ले रहे हैं जो कि उस वक्त हमारे कांटेक्ट में ही नहीं है, जिसके साथ हमारा कोई लिंक ही नहीं है, हम इसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बहुत दूर है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सिग्नल्स डिटेक्टर लगे हुए हैं, तो ये हमें ऊपर से इनके साथ वीडियो, जिस तरह हम गूगल मैप्स पे आप चले जाएं, अब गूगल मैप्स पे देखें, सैटेलाइट की हेल्प से हम मैप्स सारे देख रहे हैं ना, हमें तो वैसे तो नहीं पता होता। तो सेम इज़ द केस कि सर्वेइंग भी आप ऐसे कर लेते हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं घर में बैठ के आप सारा सर्वे कर लेते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे कितना डिस्टेंस है, सब कुछ वो मैप दे रहा होता है। तो दिस इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सब सिस्टम, इसके एक सीन है और दूसरा सेंसर, प्रोसेसिंग, ग्राउंड सेगमेंट, ठीक है। फिर कन्वर्ट हाउ रिमोटली सेंस डेटा गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ये वो बता रहा है कि इसका जो डेटा है वो हम कैसे यूजफुल इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जस्ट आप देख लें, बाकी प्रैक्टिकली हमें ये करना नहीं होता, जस्ट टू लेट यू नो दैट हाउ इट वर्क्स, या हाउ दैट अथॉरिटीज और एजेंसीज और स्टेट लेवल organizations does these operations, ठीक है। ये जस्ट रीड कर लें। फिर एप्लीकेशंस उसकी क्या क्या, मतलब उसके फायदे क्या क्या हैं। एग्रीकल्चर में क्रॉप कंडीशन असेसमेंट, मतलब आप अब कुछ लोगों की लेफ्ट से एकर्स के हिसाब से ज़मीनें हैं, तो वो उस सारी में तो मैनुअली जाके नहीं कोई घूम फिर सकते, पैदल और जाएं, और उनके तो आप वो क्या करते हैं, इसका एक और तरीका भी हो सकता है, आप ड्रोन के थ्रू पिक्चर्स इमेजेस वगैरह ले लें, वो भी हो सकता है। अदरवाइज आप क्या कर लें, सैटेलाइट के ऊपर लगे हुए हैं, तो आप उसकी लाइव पिक्चर भी देख सकते हैं, लाइव उसको देख सकते हैं कि अच्छा क्या हो रहा है। इस तरह आपने कोई ये जो मिलिट्री बेस्ड मूवीज होती हैं, वो आपको लाइव डिटेक्ट करवा रही होती हैं कि कौन सी गाड़ी से कहाँ जा रही है, तो वो तो सेम इज द केस कि एग्रीकल्चर के लिए भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो क्रॉप की जो है वो कंडीशन क्या है। फिर आप देख सकते हैं कि अभी क्रॉप आपकी फसल जो है तैयार हो गई है कि नहीं, आप उसको काटने के लायक है या नहीं है। फिर अर्बन प्लानिंग में आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने प्लानिंग करनी है कोई सिटी की, तो वो मैंने कैसे करनी है, उसका मैप देख लेते हैं, लैंड यूज चेंज डिटेक्शन, फिर उसका फ्यूचर अर्बन एक्सपेंशन प्लानिंग। तो आप वो सारे का सारा जो सैटेलाइट इमेजेस से आप वो सारा काम, मतलब इमेजेस लेके फिर उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज आप खुद तो हवा में तो जा नहीं सकते अनलेस कि आप जहाज को लेके जाएं, विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड, जो कि अब जा उस एरोप्लेन से भी आप जाएंगे तो एक बड़े एरिया को तो वो कवर नहीं करता, तो ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो वो आपको सही, आपकी जो विजुअल्स आपके हैं वो क्लियर नहीं होंगे। लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो बड़े क्लियर इमेजेस आपको देते हैं। हाइड्रोलॉजी, आप वाटर के रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, ओशन, वो भी देख सकते हैं। फॉरेस्ट्री एंड इकोसिस्टम, ये भी आसानी से, ओशन एप्लीकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये सारी की सारी चीज़ें ये रिमोट सेंसिंग से आप
करते हैं। और आजकल ऑलमोस्ट वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द दिस टेक्निक रिमोट सेंसिंग। ठीक है, अब ये देखें, अब हमें नहीं पता जमीन, चूंकि तूफान जब आता है, समुद्री तूफान जिसे कहते हैं, वो अब अगर ये सैटेलाइट इमेजेस से हम ना करें तो हमें कैसे पता चलेगा, या हमें कैसे पता चलेगा कि समंदर के अंदर तूफान है, तो हम ये जो हमारे बड़े बड़े कार्गोज हैं, ये हम इसको फिर उस रास्ते से ना भेजें। तो ये जो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर साइक्लोन है इस वक्त, या कहाँ कौन सी जगह सेफ है। तो इनिशियली आप क्या करते हैं कि रिस्क मॉडलिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, प्रिपेयर्डनेस, तो फिर रेस्क्यू आप करते हैं, फिर रिकवरी करते हैं, फिर सैटेलाइट यूज। ये देखें, इस सैटेलाइट की मदद से इन्होंने ये सारे काम किए हैं। ये ज़मीन का पूरा उसने मैप ले लिया, वो इमेज ले ली, और ये देखें इसको पता चल गया कि समुद्र में कहाँ कहाँ इस वक्त ये तूफान है। तो ये एक्चुअल इमेजेस हैं इस सैटेलाइट की। ठीक है, मतलब जब आप उसका उसकी कंडीशन देख लेंगे तो फिर उसी के हिसाब से आप उसको कहेंगे कि अच्छा, इसको मैंने कम मिटिगेट कैसे करना है। इसके मिटिगेट, अब ऑब्वियसली समुद्री तूफान को आप तो कम नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली अपने एक्शंस को, अपने जो उन चीज़ों को अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। फिर लेट्स से अगर तूफान ने मूव करना है टुवर्ड्स बीच या उसके सी साइड पे, तो आप क्या करेंगे, उस जगह एरिया को उसको सील कर देंगे और लोगों को वार्न कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, या फिर प्रिपेयर्डनेस में और क्या हो सकता है कि लेट से आपका जहाज जा रहा है, लेकिन आपको सिग्नल्स मिले कि आगे जो है साइक्लोन है, ठीक है, समुद्र में, तो आप अपना रास्ता जो चेंज कर दें। दिस इज अगेन कॉल्ड प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्क्यू। ठीक है, और आप जो है मतलब रिकवरी कर जाएंगे, ठीक है, उस चीज़ से। फिर इसी तरह अर्थक्वेक्स में भी ये हम यही काम कर सकते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हम देख सकते हैं अच्छा कौन किस जगह पे अर्थक्वेक हो रहा है, कितने मैग्नीट्यूड का है, और सारा। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप्स ऑफ हमारे जो हैं सैटेलाइट्स वो होते हैं उसमें। अब ये देखें, ये अर्थक्वेक का डेटा इस सैटेलाइट की मदद से ये सारा लिया गया है। ये उन्होंने मैपिंग की, फिर ये प्रिपेयरनेस, फिर उसको रेस्क्यू, रेस्क्यू में क्या करना है, रिकवरी में क्या करना है। फिर इसी तरह फ्लड्स। ठीक है, फ्लड्स का डेटा इन्होंने विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सैटेलाइट्स या रिमोट सेंसिंग मेथड उन्होंने इसी तरह से मेजर किया। फिर ये देखें डिजास्टर्स, उनका भी डेटा ये देखें विद सैटेलाइट्स, जो जो वोल्केनो, अच्छा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जो हमने जो लावा इरप्शन और बहुत सारी चीज़ें देखी थी, वो भी देखें सैटेलाइट की मदद से वो कर सकते हैं। फिर फायर, कितने बड़े एरिया में लेट से फायर लगी है, जिस तरह लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी थी। तो अब ओबियसली आप उस एरिया, वो चूँकि हीट इतनी होती है, तो आप उसके ऊपर इवन जहाज़ के थ्रू भी मूव नहीं कर सकते, धुआं और वो सारी चीज़ें। तो आप क्या करते हैं फिर, सैटेलाइट इमेजेस लेके डिटेक्ट करते हैं अच्छा कितने एरिया में है, और सारी चीज़। तो दैट्स ऑल अबाउट मॉडर्न सर्वेइंग टेक्निक्स। ठीक है, तो अभी इसमें कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, एनी डिस्कशन, एनी confusion regarding any lecture, you are more than welcome to ask.